Good morning, student. Today we are going to learn service transition processes. So there are seven processes of service transition phase also. So namely transition planning and support, change management, which is the important one, service assets and configuration management, release and deployment management, service validation and testing, change evaluation. You can see that the change management, the process which is responsible to implement the change if necessary, and there is a separate process to evaluate whatever changes we have made, whether that is correctly implemented or not. Then knowledge management, you know that in principles we have learned one principle about knowledge transfer, so that can be achieved through knowledge management. And the eighth point in the chapter just talks about what is service knowledge management and how it is handled in overall IT service management life cycle. So seven processes are there, and the last point is all about knowledge management system. Let us start with the process number one, transition planning and support, that is referred as TPS. So what do your name suggest to you? हम लोग सर्विस ट्रांजिशन फेज को कैसे प्लान करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और ड्यूरिंग सर्विस ट्रांजिशन फेज हम लोगों को किस किस चीज़ का ज़रूरत या मदद या हेल्प लगेगा, उसका सब कुछ प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना इस प्रोसेस का काम रहेगा, इस प्रोसेस ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा. So TPS one of the main process, as well as all the processes are called as one main. It is all about managing service transition projects. So what are service transition projects? So in service industry, after service strategy and service design phase, before actual implementation, in live environment, whatever testing is done, whole service ka testing is done, that is called as transition phase. So this particular process is responsible to manage the overall transition. This is why this process is sometimes referred as the process of ITL project management, because after that deployment of service is going to happen. So that means service is going to be open for the customer. TPS stage works as an interface between ITIL and other project management framework. So what is the objective of this particular process? The primary goal of TPS is to plan and coordinate resources for the deployment of new or change service within estimated cost, time and quality. So obviously ट्रांजिशन प्लानिंग फेज का कंप्लीट गोल यही है कि पूरा ट्रांजिशन जो है, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, रिव्यू, मेजरमेंट, सब कुछ प्रॉपरली प्लान होना चाहिए. जो जो रिसोर्सेस लगेंगे, ह्यूमंस रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, स्किल्स रहेगा, वो सारे यूज होने चाहिए as per the budget that is cost, within the time and with required quality. Sorry. It also has other goals such as risk management to reduce the probability of failure. Why we are doing the testing? We are testing because we want to be sure that there should not be any failure when the service is going to be operational. So obviously that aim, we are aiming to improve the performance. Well, obviously there will be going to be some activities. DPS, some tasks and activities are used by other service transition processes, such as change management, release deployment management, configuration management. That all we are going to learn today. Okay. So few of the, because transition planning and support covers whole transition process. So obviously, whatever the other processes are there, that are going to take some of the activity and steps from the TPS. So what kind of activities we have to do in this process? So activity we are doing means, that means we are writing or drafting or implementing whatever is mentioned as a activity here in the form of points. So they will address this particular process, or process manager or the people will address the issue and risk, and they will manage that. They will define tasks and activities to be carried out through the separate processes. So TPS process is responsible to decide what are the other processes. Let us, for example, change management process है transition phase में. So change management में क्या activities होगा, उसके task और activities
सेपरेट प्रोसेसेस में क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, टीपीएस। सो टीपीएस इज द ट्रांजिशन फेज का main process, so that here they plan for other processes. Okay, so they will also manage the milestone schedules कब कब कौन से शेड्यूल्स रहेंगे, प्रोडक्ट डिलीवरी डेट, कौन सी प्रोसेस का कब कंप्लीशन डेट होगा। ओके, एंड एवरी स्टेज दे विल ऑप्टिमाइज द स्टाफिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइज स्टाफिंग, कम से कम स्टाफ में ज्यादा से ज्यादा काम करवाने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब वो कुछ अनएथिकल वे से उन पे बर्डन नहीं डालेंगे, बट ऑब्वियसली अच्छे तरीके से स्किल देकर टाइम मैनेज करके उनसे ज्यादा काम निकलवाएंगे। रिसोर्स रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करेंगे, बजट्स एंड टाइम फ्रेम को मैच करने का कोशिश करेंगे। यूज ऑफ लीड टाइम्स, व्हाट इज द लीड टाइम, एक एक्स्ट्रा टाइम वो शेड्यूल करके रखेंगे, सो दैट अगर इन केस ऑफ सम इमरजेंसी में कुछ उनको अचानक से सडनली नए चेंज का टेस्टिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो कंटिजेंसी या इमरजेंसी शेड्यूल कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट है लीड टाइम। सो एक्स्ट्रा टाइम उनको कैलकुलेट करके रखना पड़ता है, दैट कैन बी यूज एज अ इमरजेंसी, ना कि वो इमरजेंसी आने के बाद फिर डिले करना। डिले करने से अच्छा है पहले से सोच के रखो, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा में बचा के रखो। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, समटाइम्स अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एवरीथिंग गोज वेल, तो उस टाइम पे आपके एम्प्लॉय फ्री रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ओके, बट अगर इमरजेंसी है तो दे कैन यूज इट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट एक्टिविटी, इंटीग्रेट ट्रांजिशन प्लान। बिकॉज ट्रांजिशन में और 6 प्रोसेसेस है, 7 प्रोसेसेस में से सबसे पहला प्रोसेस है, बाकी सब प्रोसेसेस को एक्टिविटीज देना प्लस ओवरऑल ट्रांजिशन का एग्जीक्यूशन देखना। So next is integrate transition plan that must be linked to lower level plans such as plan for release and development and testing in other processes. So integration means here this process will be doing some activity which will bring accuracy, performance, reliability in release, development and testing. So obviously the next activity is going to group this releases and deployment, because सर्विस भी रहता है तो वो कंप्लीट एज अ सर्विस के अंदर उसमें मल्टीपल टास्क होते हैं, चेंज को इनकॉर्पोरेट करना या फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना। ये मल्टीपल सर्विसेज है, मल्टीपल सर्विस का प्रोसेसेस है, इनको डिप्लॉय करना, उनके रिलीज होते हैं। जब ये एक साथ बन जाता है तो बंच ऑफ पैकेज बन जाता है और एक कंप्लीट सर्विस बन जाता है। तो जो भी सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम है उनको ग्रुप करना चाहिए, ताकि each individual deployment can be treated as a separate project. Okay, so transition planning and support process do some has some benefits that we are going to address. So we will just look after the benefits provided by transition planning and support process. Because of this process, if we implement activities of this process properly, then we can achieve the increased service consistency through use of well-established policies and standards and models. So obviously, if we are planning overall from start to end, how to transition testing live environment में कैसे start होगा, कैसे end होगा, तो हम लोगों को consistency मिलेगा. We will also able to uh, मैनेज मल्टीपल ट्रांजिशन साइमल्टेनियसली। इट नीड नॉट टू बी कि एक ही सर्विस का ट्रांजिशन देखे, मल्टीपल ट्रांजिशन भी हम लोग एक साथ कर सकते हैं। कॉस्ट इफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। देयर आल्सो वी हैव टू डू प्रायोरिटाइजेशन ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। अगर मल्टीपल ट्रांजिशन करना है तो ऑब्वियसली कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसे रहेंगे जिनको हमको शेयर करना पड़ेगा। तो व्हाट ट्रांजिशन फेज विल डू, टीपीएस फेज विल डू और टीपीएस प्रोसेस विल डू, टीपीएस प्रोसेस विल decide the priority ki which particular resources when it will be used by some other process. Also, here it ensures that transition and project implementations are carried out in accordance with the agreed service strategy. Obviously, transition में जो भी हम लोग लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग होगा वो एज पर सर्विस स्ट्रेटजी और एज पर सर्विस स्ट्रेटजी के जो प्रिंसिपल्स है वो भी ध्यान में रखे जाएंगे, और ये और ध्यान में रखा जाएगा कि वो ऑपरेशन फेज में प्रॉपरली जाए। और एक बेनिफिट ये है, इट इंश्योर्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट्स आर अलाइंड विद देयर चेंजिंग बिजनेस नीड टू अवॉइड लास्ट मिनट प्रोक्योरमेंट डिसीजन। ये क्यों होता है लास्ट मिनट प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज डिसीजंस।
कभी कभी फिर हम टेस्टिंग फेज में आते पता चलता है कि कुछ रिसोर्सेस या कुछ सप्लायर का जो मटेरियल चाहिए वो कम गिर रहा है, तो फिर हम लोगों को लास्ट मिनट में परचेस करना पड़ता है, फिर टाइम कम मिलता है कि नई चीज़ें जो हमने नए एलिमेंट या नए टेक्निकल पार्ट्स या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के आइटम जो हमने लिए हैं वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उनको डेटाबेस में एंटर करना पड़ेगा, उनका टेस्टिंग करना पड़ेगा। So this is a bad thing. So what TPS process does to avoid last minute procurement decision, they anticipate future budget and resource requirement throughout the service transition process. So एकदम से पूरे टेस्टिंग फेज में शुरू होने के बाद वो लोग एक्स्ट्रा रिसोर्स परचेस नहीं करते, उसके पहले ही प्लान करके रखते हैं, सो दैट इज अ बेनिफिट। तो लास्ट मिनट जो गड़बड़ी हो सकती है वो अवॉइड करेंगे। देर आर 4 सब प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू लर्न। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन का मतलब क्या है? सर्विस ट्रांजिशन फेज का इनिशिएशन। ओके, सो हियर इन ट्रांजिशन फेज we are requiring everybody to participate to test the overall service in the live environment before actually going it to real customer. So here in initiation phase of TPS, it used to define who are going to be your stakeholders, their responsibility matrix. What is the responsibility matrix? In first chapter we have learned RACI matrix. Okay, कौन किसका अकाउंटेबिलिटी रहेगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, बेसिक डेट्स यहाँ पे डिसाइड रहेंगे कि कब हम लोग फेज 1 का पहला प्रोसेस शुरू करेंगे ट्रांजिशन का, देन सेकंड प्रोसेस कब शुरू करेंगे, कौन सा एक्टिविटी किस डेट को किस टाइम को होगा, वट एवर रिसोर्स अवेलेबल टू द प्रोजेक्ट वो कौन कब यूज करेगा, अगर शेयर्ड रिसोर्सेज है तो उसका प्रायोरिटाइजेशन कैसे होगा। ओके, और ये सारी चीज डिसाइड करते ही प्रोजेक्ट इनिशिएशन सब प्रोसेस में, प्लस इसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन फेज में कौन से रिस्क आएंगे, कौन से रूल्स रहेंगे, और कुछ प्रेडिक्शन या अजम्पशंस करेंगे विच कैन अफेक्ट द प्रोजेक्ट। सो दिस इज द वर्क दैट वी हैव टू डू इन प्रोजेक्ट इनिशिएशन सब प्रोसेस ऑफ TPS। Then once it is decided, the next part is project planning and coordination. What is the project here? Completing the transition is the project. So this particular sub-process is responsible for planning service transition project in accordance with the organization project management guidelines. So इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस उसका स्किल डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इनिशिएशन फेज में बहुत सारी चीज़ें प्लान हुई है उसको एग्जीक्यूट करके कोऑर्डिनेट करने का। ओके, सो बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर हायर अथॉरिटी के गाइडलाइन जो रहेंगे वो फॉलो करना, एज वेल एज ऑल्सो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज अक्रॉस द प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट sub processes is project control. The project control is responsible for continual monitoring of project progress and resource consumption to expedite मतलब उसका speed बढ़ा देंगे, to expedite the progress when required and to initiate corrective action if required. So what do we mean by control? Just making and monitoring कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस सही ढंग से पॉजिटिवली जा रहा है या नहीं जा रहा है, कितने रिसोर्स कंज्यूम हो रहे हैं, कितने रिसोर्स यूज हो रहे हैं, अगर जरूरत रहेगा कहीं पे अगर प्रोग्रेस कम हो रहा है या फिर स्पीड लो हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड, उसका स्पीड बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड और करेक्टिव एक्शंस लेने का। ऑब्वियसली ये व्हेन द ट्रांजिशन प्रोसेस जब शुरू रहेंगी उसके बीच में है, मतलब मॉनिटरिंग करेंगे जब ट्रांजिशन चल रहा है तब। ऑब्वियसली खत्म होने के बाद, ट्रांजिशन फेज खत्म होने के बाद, द सब प्रोसेस विल रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। सो दिस सब प्रोसेस विल प्रोवाइड ओवरऑल समरी रिपोर्ट ऑफ ऑन प्लान एंड ऑनगोइंग service transition project, which then communicated to stakeholders and other service management process. So these are sub processes. There are some terminologies and definitions. लीड टाइम ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों को बताया, दिस इज द टाइम बिटवीन इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ कंजिक्यूटिव बट पार्शियली डिपेंडेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। सो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ये कब मिलता है आप लोगों को? जब आप लोग कोई प्रोजेक्ट या कोई टास्क शुरू करते हो और वो खत्म होते हो, वो खत्म होता है, तो इस टाइम में कुछ उनका प्रोसेस को जो लगने वाला टाइम है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टाइम रहता है, बट उसके बाद में अगर ये कंप्लीट हो गया तो सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बिकॉज लेटर से दो प्रोसेस डिपेंडेंट है। ओके, एंड पहली प्रोसेस अगर जल्दी खत्म हुई तो दूसरी प्रोसेस उतनी जल्दी खत्म होगी, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। ओके, यू नो द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आप लोगों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी पता है कौन सी वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटी? सो इट इज कॉल्ड एज रिले।
सो बैटन रिले में क्या होता है, अगर पहले लेट अस से 4 पीपल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सो अगर पहले वाले ने जो अपना रनिंग का पार्ट है वो अगर जल्दी खत्म किया तो दूसरे वालों को उतना लीड टाइम मिलता है. डू यू अंडरस्टैंड? इफ फर्स्ट एक्टिविटी इज फिनिश्ड अर्ली by saving the time, the second activity can start early because they are consecutive. Okay, बिकॉज वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. सो जो टाइम बचता है किसी प्रोसेस का जल्दी खत्म होने से और दूसरा डिपेंडेंट प्रोसेस जल्दी शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज लीड टाइम. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डेटा फॉर प्रोजेक्ट प्लान अपडेट. दिस रिप्रेजेंट करंट स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड रिसोर्स कंजम्पशन. कितने कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे यूज हो रहे हैं, प्लस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कहाँ पे है. प्रोजेक्ट चार्टर. So project charter is a statement about scope, objective and participant in the project. कितने लोग काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टेस्टिंग या फिर ट्रांजिशन फेज का, स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है हर एक प्रोसेस का. ओके. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइज द स्टेक होल्डर एंड डिफाइन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी. इफ इट इज नॉट मेंशन, पहले से मेंशन रहेगा तो उसका यूज करेंगे, नहीं तो खुद वो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर बनाया जाएगा. और कौन बनाएगा? टीपीएस वाले पीपल. ओके. They list any constraint and rules also which can affect the project. Next is project history log. A, it is a document used to record important events during the course of project. जो जो important चीज़ें हुई है प्रोजेक्ट ट्रांजिशन फेज में, कौन से डिसीजन लिए गए हैं, कौन सी गड़बड़ी हुई थी जिसकी वजह से कौन से एस्केलेशन मेजर्स अपनाए गए, कौन से चेंजेस हुए हैं प्रोजेक्ट स्कोप में. तो ये सारा चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट हिस्ट्री लॉग. Here project means transition phase. Huh? Project portfolio status report. The project portfolio status report is overall summary report and all planned or ongoing project. It includes key information about projects such as project का current status, कौन से milestone achieve किए. Milestone is nothing but हम लोग क्या करते हैं कि पहले let us say 10 days में इतना काम होना चाहिए. If we achieve that, then we can say that we have achieved one milestone. Then second and third, we are just targeting our milestones. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल बताया है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो ट्रांजिशन फेज को कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबल रहता है. द प्रोजेक्ट मैनेजर इन टीपीएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज टू डिप्लॉय न्यू और चेंज सर्विस विद इन predicted cost, time, in as well as with quality estimate. This role is also shared with other dedicated project management framework that are placed within the organization. Let us talk about the one of the interesting process of transition management phase is change management. Carefully listen to the process and the terminologies in this process. It is going to be one of the bigger process. Change management is one of the key processes of service transition module. It describes all approaches to organizational changes. It guides an organization to optimize resource utilization, business processes, budget allocation, or other modes. What is the scope of change management? This process is closely linked to the process of service assets and configuration management. If there is something changed, we need to hire some hardware and software. It is often interact with CMDB, that is referred as Change Management Database, which is technically an essential component of this process. बिकॉज जो भी चेंज होगा तो उसके हिसाब से कौन से चेंजेस हुए, उसके हिसाब से कौन से रिसोर्सेज लगे या रिमूव किए, वो सारा रिकॉर्ड रहना चाहिए. इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड द प्रॉब्लम मैनेजमेंट फेज, बिकॉज चेंजेस माइट बी समटाइम्स वी हैव टू डू बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम और इंसिडेंट ऑल्सो. इनकी वजह से हमको चेंजेस करना पड़ सकते हैं. इफ चेंजेस आर नीडेड टू सॉल्व एनी क्रिटिकल प्रॉब्लम, so obviously it works closely with incident management and problem management. This process also works in parallel with release and deployment management to keep track of changes made between release and changes that follow. So first we need to understand what is exactly a change. Change word का meaning क्या है? So technically, change is an event that gives rise to a new status for one or more configuration item and has impact on current business approach. So let us
Devise it. Change is an event, something that happens that give rise of new status, मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम रहेगा उसका करंट सिचुएशन जो था, उसका करंट स्टेटस था, वो नया कुछ बन जाएगा, आइदर एक्टिव और इनएक्टिव और समथिंग चेंज्ड और रिप्लेस। ओके, एक या एक से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन आइटम में चेंज हो सकता है, प्लस इस चेंज की वजह से करंट जो हमारा बिजनेस अप्रोच है उसमें इफेक्ट होता है, शायद पॉजिटिव हो सकता है, शायद नेगेटिव हो सकता है। So something that is not there previously and right now that is there, that is called as change. Let us say एक हार्ड डिस्क है, ओके, और वो हार्ड डिस्क हम लोगों ने रिप्लेस किया तो व्हाट वी आर डूइंग, चेंज। एक हार्ड डिस्क है उसको रिपेयर किया तो व्हाट वी आर डूइंग, चेंज। एक प्रोसेस है उसमें 7 एक्टिविटीज थी, उसमें हमने बिकॉज उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो 2 एक्टिविटी और ऐड किया तो 9 एक्टिविटी हो गया, व्हाट इज दैट, चेंज। प्रीवियस स्टेटस क्या था, 7 एक्टिविटीज, अभी नया स्टेटस क्या है, 9 एक्टिविटीज। प्रीवियस स्टेटस क्या था, पुराना हार्ड डिस्क, अभी नया स्टेटस क्या है, नया हार्ड डिस्क। सो छोटे से छोटा चीज और बड़े से बड़ा एक्टिविटी का प्रोसेस का स्टेप्स जो जिसमें हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, दैट इज रेफर्ड एज चेंज। इट इज देयर फॉर मीन्स फॉर व्हाट इज द चेंज अगेन, एडिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एनीथिंग दैट वुड हैव इफेक्ट ऑन आईटी सर्विस। तो इससे क्या होगा, ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं तो भी हम लोग स्टेटस चेंज कर रहे हैं, सो दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज। ITL also tells us that every change should be controlled change. मतलब अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना है, इट्स सपोज टू बी कंट्रोल चेंज, मीनिंग दैट द चेंज एक्टिविटी शुड बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट ग्रुप और कंपनी। सो कोई भी इनिशिएट करेगा कि मुझे लगता है कि ये चीज चेंज करनी चाहिए तो वो अप्रूव नहीं होना चाहिए, दैट सपोज टू बी फॉलोड बाय द प्रोसीजर एंड सीनियर ऑफिशियल्स या मैनेजमेंट ग्रुप ने उसको परमिशन देना चाहिए। The scope of organizational change comprise all changes, all architectural changes, process-related changes, tools or metrics या documentation-related changes. So overall IT services के changes and configuration items सारे इसी प्रोसेस के अंदर चेक एंड वेरीफाई किए जाएंगे अंडर द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट हैज सम टाइप्स। सो चेंज उसे कहते हैं हम लोग मॉडल्स बोलते हैं, चेंज मॉडल। ओके, यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ चेंजेस बोले गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो देर इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ चेंज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड चेंज। द स्टैंडर्ड चेंज टाइप और स्टैंडर्ड चेंज मॉडल इज यूज फॉर प्री ऑथोराइज, मतलब जिस चेंजेस को पहले से परमिशन मिला रहता है, रिपीटेटिव, लो रिस्क एंड वेल टेस्टेड चेंजेस। ओके, सो स्टैंडर्ड चेंजेस जो है, जो रेगुलर होते हैं, जिसको पहले से अप्रूवल मिला है और जिनकी वजह से कुछ ज्यादा रिस्क आने का चांसेस नहीं है और वो वेल टेस्टेड है, वो जनरली होते रहते हैं। दीज आर रेगुलर चेंजेस फॉर विच द सपोर्ट टीम डजंट रिक्वायर टू सीक एक्सप्लिसिट चेंज अप्रूवल। सो स्टैंडर्ड चेंज करने के लिए किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एंटीवायरस को अपडेट करना। अब एंटीवायरस को रेगुलरली मंथली अपडेट करना, इससे कोई रॉन्ग थिंग तो नहीं होगा। ओके, इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे कोई गलत होगा नहीं, उल्टा एंटीवायरस अपडेट होगा तो सेफ्टी ही अचीव आएगा। सो दिस इज गोइंग टू हैपन रेगुलर बेसिस। लेकिन एंटीवायरस को अपडेट करना भी चेंज है, बिकॉज पहले वायरस का डेफिनेशन अलग था, नया वायरस का डेफिनेशन उसमें आएगा, सो दैट दे कैन कैच द कंप्यूटर वायरसेस। देन सेकंड, यहाँ पे एग्जांपल दिया स्टैंडर्ड चेंज का, रिक्वेस्ट फॉर पासवर्ड रीसेट। एम्प्लॉयज अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, अब उसके लिए मैनेजमेंट से परमिशन लेने का जरूरत नहीं, वो अपना फॉरगेट पासवर्ड का रिक्वेस्ट डालेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल रहेंगे वो अब उनको पासवर्ड रीसेट करके देंगे। सो स्टैंडर्ड चेंज क्या है, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड रहते हैं, लो रिस्क रहते हैं। देन द नेक्स्ट कैटेगरी और मॉडल इज नॉर्मल चेंज। Normal change is most generalized change model. Any changes which falls into normal change category must go through certain predefined steps before implementation. Normal change को implement करने के लिए predefined steps है। This is also referred as a normal as well as formal change. So formal changes मतलब with approval changes. वो changes को implement के लिए defined schedule होता है और timeline होता है। These generally are major changes that require proper assessment. Proper assessment मतलब change है या नहीं, करना है या नहीं, proper authorization, proper approval from change advisory board. There is one committee we are going to learn what is the change advisory board. It is a committee that approves the change करना है या नहीं, and also go through the review process after implementation. जो change evaluation का process है वहां पे ये जाएगा. So normal changes are
formal changes, they require approval, predefined steps, schedule, and timeline. So, what are the examples of normal changes? Adding new feature to an application. It is a major change. मेजर चेंज उसको नहीं बोल सकते, बट यस, अगर आपका फंक्शनैलिटी पहले साथ था और अभी एक नया फंक्शनैलिटी यूजर को किसी सॉफ्टवेयर में दे रहे, तो उसके लिए आप लोगों को एक पैच और अपडेट देना पड़ेगा सर्वर पे, सॉफ्टवेयर में एक नया रिलीज करना पड़ेगा, जैसे 1.0.1 जो हम लोगों ने रिलीज की बात की वो होना चाहिए. ओके, दिस टाइप ऑफ चेंज इज मैनेज्ड इन वेरी फॉर्मल वे. We would discuss the actual step under change activity section further on. So hopefully you understood the normal change and standard change. The next is emergency change. Emergency change model is used when very critical change is necessary to restore any failed service or component within the short period of time. This type of change request is typically raised to restore or replace failed service or component from the incident management or problem management process. सो इमरजेंसी चेंज क्या है कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन अचानक से कुछ इंसिडेंट या प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो इमरजेंसी में विद इन लेस टाइम, बिकॉज हम लोग सर्विस को स्टॉप नहीं करना चाहते हैं, तो अचानक से कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें रिप्लेस या मॉडिफाई करनी पड़ती है, दैट इज इमरजेंसी चेंज. फिर ये नॉर्मल चेंज के जैसे ही है, नॉर्मल चेंज भी नया चीज़ कुछ बड़ा मेजर चेंज है, इमरजेंसी चेंज भी मेजर चेंज है बिकॉज सर्विस स्टॉप हो गया. तो दोनों में डिफरेंस ये है, नॉर्मल चेंज में प्री डिफाइंड शेड्यूल रहता है, वो अभी सर्विस बंद नहीं है, किसी ने सजेस्ट किया है कि बेटरनेस एंड इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन में और एक फंक्शनलिटी ऐड करना है, तो वो आराम से सच ढूंढ के प्रॉपरली क्वालिटी एस्पेक्ट देखकर, टाइमलाइन देखकर जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो नॉर्मल चेंजेस है. इमरजेंसी चेंजेस क्या है, अभी सर्विस लोग यूज कर रहे हैं, कस्टमर यूज कर रहे हैं और उनका सर्विस बंद हो गया किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वहां पे आप लोग निगेटिव इम्पैक्ट नहीं चाहते हो, तो आपको इमरजेंसी में वो चेंजेस इंप्लीमेंट करने. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, नॉर्मल चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है, इमरजेंसी चेंजेस को करने के लिए आप लोगों को कम टाइम रहता है. सो प्रोसेस जो है अप्रूवल लेने का और जो भी बाकी का टाइमलाइन फॉलो करने का, वो नॉर्मल चेंजेस में पॉसिबल है, इमरजेंसी चेंज में उतना टाइम नहीं है. तो इमरजेंसी चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज इट हैज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट, थोड़ा अलग से प्रोसीजर होता है. उनको जल्दी से इमरजेंसी प्रोसेस को जल्दी से अप्रूवल मिलने के लिए इमरजेंसी चेंज एडवाइजरी बोर्ड का मीटिंग रहता है. ओके, इमरजेंसी कैब मीटिंग. तो उस मीटिंग में एक या दो ही लोग रहते, 5-6 लोगों का आने का जरूरत नहीं, वही लोग इमीडिएटली इमरजेंसी में अप्रूवल दे देते अगर जरूरी रहेगा तो, और वो चेंज जल्दी से जल्दी किया जाता है. सम एग्जांपल ऑफ इमरजेंसी चेंजेस आर चेंज फॉर द क्रिटिकल सर्वर्स फॉल्टी कंपोनेंट, सर्वर अचानक से स्टॉप हो गया सर्विस देने के लिए. ओके, और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रैश्ड एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया. फॉर दिस इमरजेंसी, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड एंड कस्टमर पे नेगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता है, इसलिए एक सेपरेट बॉडी रहता है जिसे कहते हैं इमरजेंसी चेंज मॉडल. It is mandated to call for a meeting of ECAB, emergency CAB. CAB is change advisory board, जो स्टैंडर्ड चेंजेस को नॉर्मल चेंजेस को अप्रूवल देता है. स्टैंडर्ड चेंजेस को तो अप्रूवल लगता ही नहीं है, बट ई कैब क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में अप्रूवल देने के लिए एक कमेटी रहता है जिसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं. सो उनका मीटिंग बुलाया जाता है इमीडिएटली इमरजेंसी में, एंड दे विल मेक डिसीजन बिफोर द चेंज एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मल रिटर्न अप्रूवल आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द change. So what is the difference between, basic difference between normal change and emergency change? Normal change किसी निगेटिव इम्पैक्ट की वजह से नहीं होता है, इमरजेंसी चेंज नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से होता है, और नॉर्मल चेंज में सफिशिएंट टाइम रहता है, सफिशिएंट अप्रूवल्स होते हैं, सफिशिएंट मीटिंग्स होता है. इमरजेंसी चेंज में थोड़ा सा शॉर्टकट लिया जाता है, जल्दी से वो किया जाता है. ऑब्वियसली जल्दी से किया जाता है मतलब चीजें ओवरलुक नहीं की जाती, चेंज है या नहीं वो देखा जाता है. द मेन गोल ऑफ ITIL change management process is to control all the changes throughout the life cycle of change management. This aim to facilitate the beneficial changes with minimal interruption. जो भी चेंजेस होंगे उसकी वजह से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही चेंजेस को अप्रूवल देते हैं, नहीं तो कुछ चेंज किया और IT सर्विस ही कोलैप्स हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. अदर ऑब्जेक्टिव्स आर टू क्लैरिफाई द आउटकम ऑफ द चेंज बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड. चेंज करने के बाद पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा वो भी उनको असेस करना है. एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, जो भी हम लोग रिसोर्सेस उसमें यूज करेंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए.
It is also responsible for identifying and stopping any authorized, unauthorized or unintentional changes. So चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का काम ये भी है कि अनआइडेंटिफाइड, अनइंटेंशनल, अनऑथोराइज्ड चेंजेस होने नहीं चाहिए. Another important question that is asked several times in the theory exam is called as 7 R's. The 7 R's of ITIL change management. According to the ITIL change management process, it is recommended that you only anticipate in change activity after you have understood the entire change scenario. जब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आए कि ये चेंज किस लिए है, क्यों है, करना ज़रूरी है या नहीं, तभी आप लोगों को चेंज मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए. So it is preferable to ensure that anyone involved in the change process has complete information about changing business requirement. क्यों ज़रूरी है. The 7 R's, these are 7 question rule, is created and recommended to make it easier. And that question helps us to understand the real details of changes. पहला क्वेश्चन है, who raised the question? Okay, who raised the change? किसने चेंज सजेस्टेड किया? क्या ऑथराइज पर्सन ने किया या अनऑथराइज पर्सन किया? ऑथराइज पर्सन ने किया रहेगा तो हम आगे के क्वेश्चन पे पढ़ेंगे. अनऑथराइज पर्सन ने अगर चेंज का रिक्वेस्ट किया है तो वहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे. So that's why it is called as first R. Second R, what is the reason for the change? हम लोगों को उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा. नेक्स्ट इज what is the return required from the change? सो अगर हम लोग चेंज एक्सेप्ट करते हैं, हमको रीजन पता चला, तो उसके अलावा हमको रिटर्न में क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो चेंज करते हैं तो क्या पॉजिटिव चीजें होगी हमारे प्रोसेस के साथ. देन नेक्स्ट आर इज, अगर हम चेंज इंप्लीमेंट भी करते हैं, उसका पॉजिटिव साइड भी है, तो भी उसके साथ कौन से रिस्क एसोसिएटेड है. ओके, चलो रिस्क कम है ये पता चल गया. फिर नेक्स्ट आ आता है कि अभी ये चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा. देन लेट अस से रिसोर्सेज भी है, रिस्क कम है, रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है. देन फिर हम लोग किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि ये चेंज वो इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे टीम में से जो ये चेंज को इम्प्लीमेंट करेगा, बिल्ड करेगा, टेस्ट करेगा. ओके, एंड देन अगर हम लोग ये चेंज करते हैं, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस चेंज एंड अदर चेंजेस दैट वी आर डूइंग इन, क्योंकि एक चेंज की वजह से दूसरी चीजें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज वेरी मच पॉपुलर 7 R क्वेश्चन. आई विल नॉट रिपीट दिस because this is the simple. Once again, if you read that, they will give you. If we have an answer of this all R's, then we will come to know what exactly is the change for. Change management life cycle activities. Managing change is usually very important task for business improvement, and this can only be achieved if certain discipline is maintained in this process. The activities are done at the time of normal change, and usually the sequence is listed below. पहले किस तरीके से चेंज लाइफ साइकिल का एक्टिविटी थी, क्रिएट एन आरएफसी, समबडी विल रिक्वेस्ट फॉर द चेंज. ओके, फिर चेंज मैनेजमेंट बोर्ड उसको रिस्पॉन्स करेगा कि यस वी हैव रिसीव्ड यूर रिक्वेस्ट. ओके, और फिर वो रिक्वेस्ट फॉर चेंज का एक रिकॉर्ड रहता है, वहाँ पे वो स्टोर करके रखेंगे. फिर जो हमारी चेंज मैनेजमेंट की बॉडीज रहती हैं, वो उनके पास वो मेल या रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे. ओके, उसको रिव्यू करेंगे तो पहले ये चेक करेंगे कि जिसने रिक्वेस्ट फॉर चेंज किया वो आइदर कस्टमर हो सकता है या हमारे एम्प्लॉय हो सकता है. तो पहले हम लोग रिव्यू करेंगे कि वो ऑथोराइज है या नहीं. फिर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि चेंज चेंज है या नहीं, मतलब ज़रूरी है या नहीं. कस्टमर कभी-कभी कुछ भी चेंज का रिक्वेस्ट कर सकता है जो कि हमारे पैसे में या फिर हमारे सर्विस के स्कोप में नहीं आता है, तो ऐसे चेंजेस डिस्कार्ड किए जाएँगे. सो असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग चेंज प्रपोज़ल मतलब चेंज चेंज है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कस्टमर के पास आप लोग फ्री में राउटर दे रहे हो और वो हमको बोल रहा है कि मुझे हाई-फाई कंपनी का राउटर चाहिए, सो दैट इज़ नॉट अ चेंज. वो हमारे लिए वो रिक्वेस्ट कुछ काम का नहीं, बिकॉज़ हम लोग उसको फ्री में दे रहे हैं, तो वी विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ हार्डवेयर हैज़ टू बी गिवन टू द कस्टमर. दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल. Then, if our team found that the changes are legit and required, then we will authorize the change. Then, obviously, then after that changes अगर ऑथराइज हो गए तो फिर हमारे टीम का काम है कि प्लान करेंगे और शेड्यूल करेंगे कि किस तरीके से चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे. देन वी विल कोऑर्डिनेट द चेंज इम्प्लीमेंटेशन. जब किसी को असाइन कर देंगे एज पर द प्लान और शेड्यूल वो चल रहा है या नहीं, उसको कोऑर्डिनेट करेंगे.
then we will review the result of change. Obviously, then we will close the changes as complete or roll back. अगर चेंजेस होने के बाद अगर हम लोगों को प्रॉपर आउटपुट नहीं मिला तो रोल बैक करेंगे, या तो फिर चेंज पॉजिटिवली सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो क्लोज द चेंज करेंगे. सो व्हाट आर द एक्टिविटीज? रिक्वेस्ट फॉर चेंज, अगर हम लोग इसको 7 8 9 में नहीं करते और शॉर्टकट 5 एक्टिविटी में देते, रिक्वेस्ट फॉर चेंज होता है, इम्पैक्ट एनालिसिस चेक किया जाता है, अप्रूव और डिनाई होता है, इम्प्लीमेंट द चेंज एंड रिव्यू रिपोर्टिंग. बट आई विल गिव यू दिस पर्टिकुलर 9 स्टेप्स बिकॉज ये ज़्यादा डिटेल में है जो एक्चुअल में किसी भी स्टैंडर्ड चेंज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. सो नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट सब प्रोसेस. Let us talk about change management sub processes. Change management support. Okay. इसमें 11 सब प्रोसेसेस है. दैट इज द स्ट्रेंज पॉइंट. 11 सब प्रोसेसेस है बिकॉज ये क्रिटिकल पॉइंट है, लास्ट मिनट है, ट्रांजिशन फेज है, तो यहाँ पे मल्टीपल सब प्रोसेसेस है. चेंज मैनेजमेंट सपोर्ट सब प्रोसेस यूज टू प्रोवाइड टेम्पलेट्स एंड प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स रहता है एंड गाइडेंस फॉर ऑथराइजेशन ऑफ चेंज, चीज को ऑथराइज करें. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनगोइंग चेंजेस, कौन से हो रहे हैं, जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि अदर प्रोसेसेस में कौन से चेंज हो रहे हैं. RFC, रिक्वेस्ट फॉर चेंज लॉगिंग एंड रिव्यू. इट इज नथिंग बट सर जो एक्टिविटी था हमारा 9 उसको 11 एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया और उसको सब प्रोसेस कहा गया है. RFC स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर चेंज, उसका लॉग रखने का और उसका रिव्यू करने का. दिस सब प्रोसेस यूज टू फिल्टर आउट द रिक्वेस्ट फॉर चेंज विच डू नॉट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर असेसमेंट और विच डीम्ड इम्प्रैक्टिकल, मतलब जो हम लोगों को रिफ्यूज करना है. थर्ड सब प्रोसेस है असेसमेंट ऑफ चेंज प्रपोजल. This sub process is responsible for assessing, evaluating the change proposal, describing significant strategical change, कौन से significant है, कौन से insignificant है. The purpose of accessing change proposal is to identify possible risk and impact before starting the design activity. So assessment होना चाहिए ताकि risk को avoid कर सके. Assessment and implementation of emergency change. दिस सब प्रोसेस कभी कभी होता है, अगर इमरजेंसी चेंज का सिचुएशन आया तो ही होता है. इट इज यूज टू स्पेशली टू एक्सेस और इवेल्युएट, ऑथोराइज एंड इम्प्लीमेंट ओनली द चेंजेस which are coming in case of emergency, and the way of solving is as quick as possible. This sub process is initiated only when requirement is classified as very urgent by the business and not doing any change attract doing huge business loss. कब किया जाता है इमरजेंसी चेंजेस? कब किए जाते हैं? अगर बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस होगा, अगर हमने जल्दी से जल्दी सोल्यूशन नहीं किया तो ही इमरजेंसी चेंजेस किए जाते हैं. चेंज असेसमेंट बाय द चेंज मैनेजर. This sub process is the initial assessment is done by the change manager to determine significance of the change. In case of minor changes, it may be immediately assessed and authorized by the change manager himself. बट अगर वो नॉर्मल चेंज रहेंगे और इमरजेंसी चेंजेस रहेंगे तो उसको कैप से, मतलब चेंज एडवाइजरी बोर्ड से, या फिर ई कैप से, इमरजेंसी चेंज एडवाइजरी बोर्ड से उसको सॉल्व करना चाहिए. चेंज असेसमेंट बाय कैप. कैप क्या रहता है? कमिटी रहता है जिसमें बाकी सारे जो ट्रांजिशन फेजेस के प्रोसेसेस रहते हैं उसके मैनेजर भी पार्ट रहते हैं. वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल चेंज है उसका असेसमेंट करते कि चेंज है या नहीं, उसको ऑथराइज करे या नहीं. So this sub process is responsible for assessing and authorizing significant changes to infrastructure or application. Normal changes. So यहाँ पे नॉर्मल वर्ड का मतलब छोड़ देने वाले नहीं. स्टैंडर्ड मतलब प्री अप्रूव्ड है, नॉर्मल मतलब मेजर एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस. If required higher level of authority, IT management, they are involved in authorization process. Change planning and scheduling. So this particular sub process will be responsible for making a detailed change plan and release plan. कब शुरू होगा, कब खत्म होगा. It is also responsible for scheduling important dates. चेंज डिप्लॉयमेंट ऑथराइजेशन. चेंज जब कंप्लीट होगा तब उसको चेक और वेरीफाई किया जाएगा ताकि वो डिप्लॉय करके इंप्लीमेंट हो सके. दिस सब प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ऑल रिक्वायर्ड चेंज कंपोनेंट हैव बीन डेवलप्ड, thoroughly tested, and to authorize the change deployment phase. चेंज इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट ये एक्चुअल है, ये पहले ऑथोराइज होगा कि करना है, फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा. दिस सब प्रोसेस डील्स विद द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड चेंजेस और जो कंप्लीट हुए. दिस प्रोसेस maintains the coordination with both design team and operation team to provide smooth implementation
experience. Minor change deployment only initiated to implemented low risk well understood changes which do not require involvement of release management. चेंज मैनेजर खुद ही उसको डिप्लॉय करने का परमिशन दे देगा सर, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टाइम एंड एफर्ट ऑफ डीप इन्वेस्टिगेशन विच में कंज्यूमर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम. माइनर चेंजेस है, लो रिस्क है, तो मैनेजर अप्रूव करेगा और टाइम सेव करेगा. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एंड चेंज क्लोजर. जब चेंजेस कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट है या नहीं, वो उसका असेसमेंट करना है. असेसमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ चेंज इम्प्लीमेंटेशन एंड अचीव द रिजल्ट. Also ensures that this process also ensures that complete history of activities recorded for analysis and learning lessons. So future में ऐसे changes की जरूरत नहीं आनी चाहिए. चेंज आना ही नहीं चाहिए जनरली, बिकॉज अगर प्लानिंग प्रॉपरली है, स्ट्रेटजी और डिजाइन फेज में सारी चीजें की है तो चेंजेस नहीं आते. लेकिन लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करते वक्त कुछ चीजें जो अनएड्रेस रहती है डिजाइन फेज में, उसकी वजह से चेंजेस आते हैं. द क्लोजर रिपोर्ट इज देन यूज टू अपडेट CMDB. चेंज प्रॉपरली सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होने के बाद चेंज मैनेजमेंट डेटाबेस में स्टोर किया जाता है. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशन काफी ज्यादा है, लेकिन आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट. रिक्वेस्ट फॉर चेंज, समवन रिक्वेस्ट द चेंज, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, किसने बोला है, किस वजह से बोला है, किस सर्विस के हिस्से में चेंजेस करना है, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं. सो RFC denotes a formal request for change to be incorporated. RFC specifies the key information of proposed change and must be submitted to change management. ये रिक्वेस्ट किसको दिए जाएंगे? चेंज मैनेजमेंट को. फॉर एवरी नॉन स्टैंडर्ड चेंजेस, नॉर्मल एंड इमरजेंसी चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट फॉर चेंज का एक डॉक्यूमेंट रहता है. फिर कमिटी जब वो उसको देखती है, ई कैब और कैब, तो वो चेंज प्रपोजल बनाती है. A change proposal describe proposed major change like introduction of new service or significant change in existing service. The purpose of change proposal is to communicate proposed major changes and describe the benefit, risk, impact before design activities begin. ये कंप्लीट प्रपोजल कैब मीटिंग के सामने रखा जाता है, फिर वो डिस्कस होता है और फिर आइदर अप्रूव होता है या फिर नॉट अप्रूव्ड होता है. सो चेंज एडवाइजरी बोर्ड एजेंडा टेम्पलेट, ये प्री डिफाइंड फाइल्स है जिसमें अभी इस चेंज के लिए किस ये मीटिंग में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पॉइंट्स आप रख सकते हो. चेंज इवैल्यूएशन रिपोर्ट. In this case of major changes, like the introduction of new service or significant change to an existing service, it requires a formal change evaluation before it is authorized. So ये evaluation करवाते हैं before implementation of change, ताकि हम लोगों को पता चलेगा कि रिस्क कितनी है या फिर फायदे कितने हैं. सो रिजल्ट ऑफ दैट फॉर्मल असेसमेंट डॉक्यूमेंट करके जो रिपोर्ट होता है उसे कहते हैं चेंज इवैल्यूएशन रिपोर्ट. चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी. The change management policy specifies the organizational guidelines about level of authorization required to authorize different type of change. तो यहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन से चेंज कैप को जाएंगे, कौन से चेंजेस ई कैप को जाएंगे, कौन से चेंजेस स्टैंडर्ड चेंजेस में या लो रिस्क चेंजेस में आएंगे. दैट वे वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी. ये चेंजेस अप्रूव होने के पहले ट्रांजिशन फेज होने के लिए चेंज मैनेजमेंट बोर्ड डिसाइड करके रखता है कि हमारी पॉलिसी में कौन से चेंजेस किस कैटेगरी में आएंगे. Goal of this policy is all about assessing and reducing the risk associated with the change. A complete change record. Change record contains all the details about change, किसने suggest किया था, document the life cycle, कब शुरू हुआ था, कोई भी एक change के बारे में start to end complete information is called as single change record. It is usually created on the basis of predating request for change. हर एक request for change का, let us say एक request for change का document एक हो सकता है, request for change हुआ, ओके, लॉग हुआ और कमिटी ने उसको चेक किया, रिव्यू किया और डिनाई किया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो उतना चेंज रिकॉर्ड खत्म हो गया. इंप्लीमेंट किया तो और डिटेल्स उसमें आएंगे. चेंज शेड्यूल. इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल अप्रूव्ड एंड ऑथराइज्ड चेंज प्रपोजल एंड चेंजेस दैट देयर प्लान्ड implementation schedules which comprises of date and days and time कब करना है, ड्यूरेशन. A change schedule is sometimes called as forward schedule for change, FSC. प्रोजेक्टेड सर्विस आउटेज. इन केस ऑफ इमरजेंसी चेंजेस, कभी कभी आप लोगों को वो चेंजेस इंप्लीमेंट करने के लिए सर्विस बंद करना पड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड सर्विस आउटेज. सो it is a document that describes any expected deviation from the service availability which is agreed in the SLA.
इमरजेंसी कब होता है? जो चीज़ें हमको पता नहीं और सर्विस स्टॉप हो गई, और वो चीज़ें हम लोगों ने सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये तो नहीं लिखा रहेगा कि आगे हमको इमरजेंसी में प्रॉब्लम आएगा और हम सर्विस बंद करेंगे। सो दैट इज द डेविएशन फ्रॉम सर्विस लेवल एग्रीमेंट। बट प्रोजेक्टेड सर्विस आउटेज में क्या रहता है कि उतना टाइम लगेगा टू इम्प्लीमेंट द इमरजेंसी चेंजेस, उतने टाइम के लिए सर्विस बंद रहेगा। तो ऑब्वियसली एसएलए में अगर 1% लिखा रहेगा कि टाइम के लिए बंद रहेगा, तो हो सकता है इमरजेंसी में प्रॉब्लम पड़ा रहेगा तो 2% होगा। दिस नॉट सपोज टू बी 1% का 20% टाइम डिले हुआ, छोटा मोटा डेविएशन होना चाहिए। आरएफसी टेम्पलेट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें एक टेम्पलेट रहता है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज कैसे करना है, उसका फॉर्मल चेंज को प्रपोज करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट रहता है। We are coming to the last part of this particular process. There are three roles. First is change manager. This is going to be owner of complete change management process. और उसका रोल क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? द चेंज मैनेजर कंट्रोल ऑल द चेंजेस इन लाइफ साइकिल। इट्स प्राइमरी टास्क इज टू फैसिलिटेट बेनिफिशियल चेंजेस। उनका काम क्या करना है, मेजर काम क्या है, जो बेनिफिशियल चेंजेस है उन्हीं को अप्रूव करो विथ मिनिमल डिसरप्शन ऑफ आईटी सर्विस। आईटी सर्विस को चेंज की वजह से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। द चेंज मैनेजर मस्ट सीक ऑथराइजेशन फ्रॉम चेंज एडवाइजरी बोर्ड। उसको अप्रूवल लेना पड़ता है इन द केस ऑफ मेजर चेंजेस एंड इमरजेंसी चेंजेस। अदर द चेंज मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड चेयर ऑफ द मीटिंग ऑफ कैब। हाँ, चेंज मैनेजर जो कैब की मीटिंग रहेंगे या इमरजेंसी कैब की मीटिंग्स रहेंगे, उसका चेयरपर्सन रहेगा, वो मेन रहेगा। उसका और काम क्या रहेगा, चेंजेस को कोऑर्डिनेट करो, रिव्यू करो, इश्यू चेंज शेड्यूल, चेंज कब कब करना है वो शेड्यूल को अप्रूव करो, चेंज लॉग को अपडेट करना है और मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट पब्लिश करना है। नेक्स्ट रोल आता है चेंज एडवाइजरी बोर्ड, जो हमने बहुत बार देखा है। A CAB is represented by group of person who advise the change manager, because change manager chair of that meeting या committee रहता है, लेकिन उसको एडवाइस करने के लिए कुछ लोग वहां पे रहते हैं फॉर इवेल्युएटिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड प्लानिंग द मेजर चेंजेस। दिस बोर्ड कंसिस्ट ऑफ, उसमें कौन रहेगा, सिलेक्टिवली सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ द आईटी ऑर्गेनाइजेशन। कोई बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, थर्ड पार्टी सप्लायर का कोई एक बंदा रहेगा। देन चेंज मैनेजर इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेयरिंग कैब मीटिंग्स। तो चेंज एडवाइजरी बोर्ड में जो मेजर प्रोसेसेस है उसके मैनेजर्स भी रहेंगे। हाँ, हाउएवर इमरजेंसी चेंज एडवाइजरी बोर्ड में ई कैप, इट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ चेंज एडवाइजरी बोर्ड। ये यही है, लेकिन इसमें ज्यादा लोग रहते हैं, इनके पास सफिशिएंट टाइम रहता है टू एक्सेस, इवेलुएट एंड इम्प्लीमेंट द चेंजेस। इमरजेंसी में टाइम कम रहता है, सर्विस शुरू है और वो बंद हो गई रहती है, बट इसी टीम में से ये सबसेट बनाया जाता है इमरजेंसी चेंज एडवाइजरी बोर्ड का, दैट मेक्स हाई इम्पैक्ट इमरजेंसी डिसीजन। द ई कैप मेंबरशिप इज यूजुअली डायनामिक इन कैरेक्टर। द ई कैब, अच्छा, इमरजेंसी भी हुआ तो भी अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन कैब से ना लेकर वो इमरजेंसी कैब से लेते हैं, इमरजेंसी चेंज एडवाइजरी बोर्ड से। द पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ मीटिंग। जैसे कोई इमरजेंसी से सर्विस बंद हो गया, तो चेंज मैनेजर क्या करेगा, ई कैब का मीटिंग बुलाएगा। उस टाइम पे जो प्रेजेंट है, किसमें से, चेंज एडवाइजरी बोर्ड में जो 7 8 10 लोग रहेंगे, उसमें से जो प्रेजेंट है उनको बुलाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनामिक इन नेचर, बिकॉज इमरजेंसी है, मतलब उसी टाइम पे आप लोगों को डिसीजन करना है कम से कम टाइम पे। तो चेंज मैनेजर तो रहना चाहिए, यस, कंपलसरी है। फिर वो क्या करता है, कैब में से जो मेंबर अवेलेबल है उनको कॉल करता है, जो अवेलेबल है उनको कॉल करता है, और फिर एक या दो लोग जो भी रहेंगे और उनके साथ मीटिंग करके इमरजेंसी चेंजेस को अप्रूव करता है। ओके, so that is the work of emergency change advisory board. That's all for the day. Thank you so much students for patiently listening to this lecture.